ناروے کے بلند و بالا پہاڑوں کی گہرائیوں میں ایک قدیم اور ہیبتناک طاقت نے آنکھیں کھولی ہیں۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ یہ انسان بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ناراضگی اور غصہ انسانوں ہی کے لیے ہے۔ کون ہے یہ تیوا ہیکل مانسٹر؟ اس کا تعلق ناروے کے شاہی خاندان کی پراسرار تاریخ سے کیسے جڑا ہے؟ یہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ آخر یہ طاقتور مانسٹر ہے کیا؟ اسے ہزاروں سال کی نیند سے کس نے جگایا؟ اور سب سے اہم سوال، یہ کیوں انسانوں کا دشمن بن گیا ہے؟ اس خوفناک حقیقت کو جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اس ناقابل تسخیر خطرے کا سامنا کیسے کرتے ہیں، فلم ٹرول کی یہ ریکیپ ویڈیو آخر تک دیکھنا مت بھولیں۔ فلم کی شروعات میں ایک باپ بیٹی کو مغربی ناروے کی ٹرول پہاڑیوں پر ہائیکنگ کرتے دیکھتے ہیں۔ جب وہ ایک چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو باپ ٹوبیاس اپنی چھوٹی بیٹی نورا کو مشہور ٹرولز کی لوک داستان سناتا ہے۔ ظاہر ہے یہ افسانوی مخلوقات ہزاروں سال پہلے زمین پر گھومتی تھیں، لیکن ایک دن جب وہ سورج کی روشنی کے رابطے میں آئیں تو وہ پتھروں میں تبدیل ہو گئیں۔ ٹوبیاس ایک مشہور لوک داستان پر یقین رکھتا ہے کہ ٹرولز اب بھی ناروے کی پہاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور اس کی بیٹی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ 20 برس گزر جاتے ہیں۔ نورا اب ایک نوجوان پروفیشنل ہے اور وہ زمین میں دبی ماضی کے جانداروں کی ہڈیوں کے ماہر کے طور پر کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تقریباً 6 ماہ تک ایک آثار قدیمہ کی جگہ پر کام کرنے کے بعد وہ آخرکار ایک پراسرار فوسل دریافت کرتی ہے۔ خوشی سے اس کی محنت کا صلہ ملنے پر نورا اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی حالیہ دریافت کی خوشی مناتی ہے۔ قریبی ڈوورے پہاڑوں میں میٹرو اسٹیشن بنانے کے لیے تیزی سے تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ مزدور پہاڑ کو ڈرل کر رہے ہیں اور دھماکہ خیز مواد لگا رہے ہیں تاکہ پروجیکٹ کے لیے راستہ بنایا جائے۔ درِ اثنا ایک ہجوم ان تعمیرات کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں کہ حکومت کو پہاڑ کو اس کی اصل حالت میں رہنے دینا چاہیے۔ ان کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے انجینئر دھماکہ خیز مواد کی مدد سے پہاڑ کو چھوٹے ٹکڑوں میں اڑا دیتا ہے۔ وہ اور مزدور پھر ڈوورے غار میں اندر جاتے ہیں تاکہ چیک کریں، لیکن چونکا دینے والے طور پر وہ ایک خوفناک دھاڑ سنتے ہیں۔ چند لمحوں بعد زمین کے ہلنے کو محسوس کرتے ہیں اور ایک قدیم افسانوی مخلوق پہاڑ کی چٹانی گہرائیوں سے ابھرتی ہے۔ خوف زدہ ہو کر ادھر موجود تمام مزدور اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن گرتا ہوا پہاڑی ملبہ آخرکار ان کی زندگیاں لے لیتا ہے۔ جلد ہی اس واقعے کی خبر اوسلو میں ناروے کی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچ جاتی ہے۔ فوجی جنرل ایک طیارہ بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ جگہ پر کیا آفت آئی اس کی واضح تصاویر حاصل کی جائے۔ وہ پھر ہدایت دیتا ہے کہ وزیر اعظم کو مطلع کیا جائے۔ اس کے بعد ہم ناروے وزیر اعظم اور ان کے مشیر اینڈریاس کو فوجی اڈے کی طرف جاتے دیکھتے ہیں۔ راستے میں دفاع کے وزیر انہیں صورتحال پر اپڈیٹ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ واقعے میں 50 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے۔ وہ پھر گراؤنڈ زیرو کی کچھ تصاویر دکھاتے ہیں اور قریب سے دیکھنے پر ہم زمین میں دیو ہیکل سوراخ دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈریاس کہتا ہے کہ یہ قدموں جیسے لگتے ہیں، لیکن وہ رائے دینے کے اہل نہیں ہیں۔ درِ اثنا نورا اب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی فوسل والی دریافت کے موقع پر خوشی منا رہی ہے۔ وہ تقریر کرنے لگتی ہے، لیکن اچانک ایک فوجی ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ایک فوجی باہر آتا ہے اور نورا کو بتاتا ہے کہ اسے اوسلو میں وزیر اعظم کے پاس طلب کیا گیا ہے۔ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے وہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو جاتی ہے اور فوجی اڈے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کی آمد کے بعد اینڈریاس اسے حکومتی افسران سے بھرپور ایک کمرے میں لے جاتا ہے۔ نورا ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے جبکہ وہ موجودہ صورتحال پر بحث کرتے ہیں۔ افسران یہ فرض کرتے ہیں کہ تباہی کسی قسم کی گیس کی وجہ سے ہوئی، لیکن نورا اس سے اختلاف کرتی ہے۔ قدم کی تصویر کو قریب سے دیکھنے کے بعد وہ مشتبہ ہوتی ہے کہ یہ پہاڑوں سے ابھرا ہوا کوئی تاریخی نوعیت والا جانور ہو سکتا ہے۔ اینڈریاس کہتا ہے کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ رائے دینے کا اہل نہیں ہے، تاہم حکومتی افسران اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہوئے کہ یہ اس کی فوسل تحقیق کی کوئی کیس نہیں ہے۔ وہ ایک جانور کے پیچھے سب کچھ ہونے کے امکان کو بھی خارج کر دیتے ہیں۔
इसी वक्त सिगरेट, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और ज़हीन खातून जो नॉर्वेजन मुसल्ला अफवाज के लिए काम करती है, अंदर दाखिल हो जाती है और ग्रुप को बताती है कि उसने वाकई से एक वीडियो हासिल कर ली है। जब वो इसे चलाती है तो अफसरान तकरीबन 150 फुट लंबे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो डोवरी गार से निकल रहा है। ये मंजर आखिरकार उन्हें कायल कर देता है कि नॉर्वे में कोई देव हैकल मखलूक पहाड़ों से बाहर निकल आई है। दूसरी जगह एक दूर दराज इलाके कहा जाने वाले लिस्जा में एक बुजुर्ग कपल दोपहर की चाय पीने के लिए बैठा होता है जब वो एक जोर की धाड़ सुनते हैं। जल्द ही उनकी मेज़ हिलने लगती है जिससे करीबी बर्तन गिर जाते हैं। मियाँ बीवी ये समझते हैं कि ये जलजला है तो वो जल्दी से अपने हिफाजती अंडरग्राउंड जगह छुप जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद वो उस महफूज जगह से बाहर निकलते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका घर तबाह और मलबे में बिखरा हुआ है। दरे असना नूरा वज़ीर आज़म को बताती है कि वो डुवायरे वाक़े की तहकीक करने को तैयार है। दीगर अफसरान इत्तेफाक करते हैं और उसे साइंटिफिक मुशीर मुकर्रर कर दिया जाता है। मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर एंड्रियास नूरा को लेस्चा वाक़े के बारे में बताता है और दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर पर इस जगह की तरफ उड़ते हैं। अपनी परवाज़ के दौरान उनके पास थोड़ी सी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है। एंड्रियास खुद को मुतारिफ करवाता है और फिर नूरा से पूछता है कि वो कदीम जानवरों की हड्डियों की माहिर क्यों बनी। उसका जवाब है कि वो बचपन से ही नेचर से मोहब्बत करती रही है। वो ये भी शेयर करती है कि उसका बाप टोबियास एक लोक दास्तां का माहिर था जो पुराने ज़माने की पहाड़ी मखलूक़ात पर यकीन रखता था। नूरा का अपने बाप से कई मामलात पर इख्तिलाफ होने की वजह से उसका बाप अब उसके साथ नहीं रहता था बल्कि किसी दूर दराज के इलाके में मुंतकिल हो चुका था। नूरा और एंड्रियास जब जगह पर पहुंचते हैं तो वो तबाही देखकर हैरान रह जाते हैं। जल्द ही उनका इस्तकबाल कैप्टन कोर्स होल्म स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर करता है। कोर्स दोनों को सूरत हाल की ब्रीफिंग देता है, वजाहत करते हुए कि मखलूक ने पहाड़ों में जुनूब की तरफ 2 मील तक अपना रास्ता जारी रखा, लेकिन अगरचे उन्होंने इलाके की तलाशी ली तो उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे देवहैकल मखलूक हवा में गायब हो गई हो। इसके बाद ये तीनों बुजुर्ग जोड़े से इंटरव्यू करते हैं जो अब भी वाक़े से टेंशन का शिकार हुए हैं। बीवी बताती है कि उसने कुछ नहीं देखा, ताहम उसने एक अजीब चीखने जैसा आवाज़ सुना। आवाज़ खौफनाक थी, किंग कॉन्ग जैसी। अफसोसनाक तौर पर मालूमात इतनी ज़्यादा नहीं मैसर आ सकी तो नूरा खुद ज़मीनी सूरत हाल की जाँच करने का फ़ैसला करती है। अचानक वो एक अजीब बू सूंघती है जो उसे एक देवहैकल कदम की तरफ ले जाती है। नूरा फिर इलाके को किसी नए खोज के लिए स्कैन करती है, लेकिन अजीब तौर पर उसमें कोई हयातियाती निशानियां नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मखलूक बिल्कुल जिंदा ना हो। अब हर सबूत एक बंद कली की तरफ ले जा रहा है। नूरा अपने नाराज बाप से मदद लेने का फैसला करती है जो दूर दराज पहाड़ में अकेला रहता है। नूरा, कैप्टन कोर्स और एंड्रियास हेलीकॉप्टर पर इसकी जगह उड़ते हैं। इनकी पहली मुलाकात थोड़ी झगड़े वाली होती है, लेकिन टोबियास आखिरकार पुरसुकून हो जाता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है। हैरत की बात यह है कि इतने सालों के बावजूद वो अब भी मशहूर मखलूकात जिन्हें ट्रोल्स कहा जाता है पर तहकीक कर रहा है। कुछ देर बाद ग्रुप उसे सिगरेट की हासिल करदा वीडियो दिखाता है। टोबियास जो देखता है उससे चौंक जाता है और वो सरगोशी करने लगता है, वो यहाँ है। अलझन में नूरा साइंसी वजाहत चाहती है, न कि कोई लोक दास्तान, ताकि वो जो भी मसला है उसका हल तलाश करें। ताहम टोबियास अपने नज़रिए पर कायम रहता है और वजाहत करता है कि ट्रोल्स नॉर्वे की मजहबी कुव्वतों की वजह से महदूम हो गए। वो फिर अपना बैग उठाता है और कहता है कि अब हम सबको एक मुहिम जुई पर जाना होगा। इसके बाद हम नूरा, उसके साथियों और टोबियास को हेलीकॉप्टर पर एक खास जगह की तरफ उड़ते देखते हैं। कुछ देर बाद वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं और टोबियास बेताब होकर माहौल को देखना शुरू कर देता है। वो नोट करता है कि इलाके की टोपोग्राफी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। दरियासना नूरा को वही अजीब बू महसूस होती है जिसे वो हाइपर नेचर कहती है। जैसे ही वो जगह को स्कैन करती है, अचानक वो अपने पीछे एक बड़ी मखलूक को बेदार देखती है। ये देवहिकल ट्रोल है जो माहौल के साथ मिलकर कैमोफ्लेज कर चुका है।
एंड्रियास और दीगर भी ये देखते हैं और जल्दी से हेलीकॉप्टर से परवाज कर लेते हैं। खुशकिस्मती से ये लोग उस जगह से बाल बाल बच निकलता है। जब वो महफूज जगह पर पहुंचते हैं तो वो इंटरनेट पर लाइव जाते हैं और वीडियो ओस्लो में हुकूमती अफसरान को दिखाते हैं। अब सबको यकीन करना पड़ गया कि ट्रोल्स हकीकत में मौजूद हैं। जल्द ही वजीर आज़म कैप्टन कोर्स की क़यादत में एक फ़ौजी ऑपरेशन का एहतमाम करती है। जल्द सैकड़ों फ़ौजी मुल्क के बेहतरीन हथियारों के साथ जमा होते हैं और देवकामत मॉन्स्टर को गिराने की कोशिश करते हैं। ताहम फोर्सेस की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद ट्रोल बिल्कुल मुतासिर नहीं होता। ऐसा लगता है कि इसके पास कोई ख़ास ताकतें हैं और वो अपने शिकारों के खून की बू भी सूंघ सकता है। एक फौजी को हलाक करने के बाद टोबियास खड़ा होता है और मखलूक को पुरसुकून करने की कोशिश करता है। बाजू फैलाए वो इब्तिदाई तौर पर कामयाब लगता है। ताहम इसी वक्त एक और गाड़ी पहुंच जाती है और ट्रोल पर कई गोलियां बरसाती हैं। जैसे ही वो मुड़ता है और अंदर वालों को कुचल देता है, टोबियास गैर इरादी तौर पर ट्रोल की दम से मार खा लेता है, जो उसे उड़ाकर ज़मीन पर गिरा देता है। वो नोरा से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर वो अपने अल्फाज वाज़ेह करने से पहले मर जाता है। इस रात गमज़दा नोरा अपने बाप की डायरी पढ़ती है और ये समझने की कोशिश में कि ट्रोल को कैसे रोका जाए या उसे बेहतर समझा जाए। घंटों पढ़ने के बाद वो सीखती है कि ट्रोल्स गिरजाघर की घंटियों की आवाज़ से नफरत करते थे, इसलिए वो बड़े पत्थर गिरजाघरों पर फेंका करते थे। बाद में वो अफसरान के साथ मालूमात शेयर करती है, दावा करते हुए कि उन्हें साइंस से बाहर के दायरे में सोचना होगा। दिफा का वजीर इस तरह की दूर दराज तो हम पर मबनी मंसूबे को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं, जनरल और वजीर आज़म इसे ग्रीन सिग्नल देते हैं। अगले सीन में हम 4 फौजी हेलीकॉप्टर्स देखते हैं, हर एक चर्च वाली बड़ी घंटी से मुंसलिक ट्रोल की तरफ बढ़ते हुए। मंसूबा पहले तो काम करता दिखाई देता है और ट्रोल नुमाया तौर पर खौफ महसूस करता दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो इसका आदी हो जाता है और ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स तबाह कर देता है। इससे नोरा का उस ट्रोल मॉन्स्टर पर चर्च की घंटियों से हमला करने का ख्याल बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, बल्कि और भी कत्लेआम और तबाही का बायस बनता है। हालात को मजीद खराब करने के लिए इस मौके पर दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसियां कहानी को उठा चुकी हैं और नशरियात कर रही हैं। नतीजों में वजीर आज़म कौम को पुरसकून करने की कोशिश में टीवी पर तकरीर कर देती है। पहले वो अपने कैबिनेट की नाकामी पर माजरत करती है और फिर इमरजेंसी का ऐलान करती है। वो ओस्लो और दीगर आसपास के इलाकों के रिहायशियों से फौरी इनखला की अपील भी करती है, क्योंकि किसी वजह से ट्रोल सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। दरअसल अपनी नाकामी की वजह से नोरा अपनी हुकूमत की जानिब से दी गई हैसियत खो देती है। दूसरी तरफ एंड्रियास को पता चलता है कि हुकूमत ट्रोल को तबाह करने की उम्मीद में ओस्लो पर बमबारी करने का मंसूबा बना रही है। इस सख्त इकदाम के खिलाफ वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देता है। नूरा और एंड्रियास दोनों हुकूमती हेडक्वार्टर्स छोड़ देते हैं। फौरी तौर पर हजारों लोग शहर छोड़ने के लिए सड़कों पर कतार बांध लेते हैं। एंड्रियास और नूरा भी उनमें शामिल हैं। नूरा अब भी इस बात से दिल गिरफ्ता है कि वो ट्रोल मसले का हल नहीं ढूंढ सकी और अपने बाप की डायरी को आखिरी बार देखने का फैसला करती है। वाह, वो एक सुराग ढूंढ लेती है। वो जर्नल में लिखा हुआ लफ्ज़ संडिंग मुतादिद बार देखती है। एंड्रियास उसे बताता है कि संडिंग दरअसल ओस्लो में रॉयल महल में रहने वाला शहजादा है। वो जाहिर है मुल्क का एक अमीर तरीन आदमी है। ये सुनकर नूरा इसरार करती है कि वो गाड़ी मोड़ दें और वापस जाएं, यकीन करते हुए कि ओस्लो में रॉयल पैलेस में कोई सुराग है। कुछ देर बाद वो शाही महल पर पहुंच जाते हैं और संडिंग से मिलते हैं, जो उनका इंतज़ार भी कर रहा लगता है। फिर वो उन्हें अंदर ले जाता है और आखिरकार नार्वे में ट्रोल्स के बारे में सच्चाई जाहिर करता है। जैसा कि निकला, टोबियास शुरू से ही दुरुस्त था। ये अफसानवी मखलूक़ात वाकई मुल्क की ज़मीनों पर चलती थीं। महल में नूरा और एंड्रियास को ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में गहराई तक ले जाया जाता है, जहां संडिंग जाहिर करता है कि उसने और दीगर अफसरान ने टोबियास की ज़िंदगी तबाह की थी ताकि अपना राज छुपाएं।
जब नूरा को समझ आई कि वो अपने बाप की बताई सच्चाई के करीब पहुंचने लगे तो संडिंग ने वो राज बताया और सामने पेश भी किया जिसमें ट्रोल फैमिली की हड्डियां ज़ेरे ज़मीन मौजूद थीं। दरअसल ये रॉयल पैलेस ट्रोल किंग की गार पर बनाया गया था जब उस दौर के ईसाई हुक्मरानों ने उसकी फैमिली को कत्ल किया और उसे पहाड़ के अंदर मुर्दा छोड़ दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि मुल्क भर में तबाही मचाने वाला ट्रोल दरअसल ट्रोल किंग है। ये वाज़ेह करता है कि ये ट्रोल मॉन्स्टर ओस्लो की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो घर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। संडिंग वजाहत जारी रखता है कि ट्रोल्स के ये फैमिली से ज़्यादा अहम कुछ नहीं और नॉर्वे की ईसाई हुक्मरानों के दौरे हुकूमत के आगाज़ में उसी ट्रोल किंग को डोवरे पहाड़ पर कैद कर दिया गया था। बिलाशुबा पहले धमाकों ने उसे आज़ाद कर दिया और अब वो ओस्लो वापस जा रहा है ताकि अपने बच्चों से मिल सके। नूरा और एंड्रियास सच जानकर चौंक जाते हैं। वो ट्रोल फैमिली की हड्डियों को देखकर और भी खौफजदा हो जाते हैं। जब नूरा मुर्दा ट्रोल्स की हड्डियों पर अपनी अल्ट्रावायलेट लाइट डालती है तो वो देखती है कि वो हड्डियां घुलने लगी हैं। वो इस वक्त समझ जाती है कि ट्रोल्स वाकई रोशनी से ख़त्म हो सकते हैं और एक मंसूबा सोचती है। अगले सीन में नूरा संडिंग से पूछती है कि उसे अपनी गाड़ियों की कलेक्शन में से कोई एक गाड़ी उधार दे तो वो उसे क्वीन का पसंदीदा पिकअप ट्रक फराहम करता है। इसके बाद वो कैप्टन कोर्स को फ़ोन करती है और मंसूबे की ब्रीफिंग देती है। वो चाहती है कि ट्रोल किंग को टर्निंग बेड से घेर दिया जाए और उसे अल्ट्रावायलेट लाइट्स के सामने ला खड़ा किया जाए, जबकि कोर्स कुछ साथी फौजियों को बुलाता है ताकि ट्रोल का जाल बनाया जाए। एंड्रियास अपनी दोस्त सिगरेट को हुकूमती मरकज में फ़ोन करता है ताकि ओस्लो मिसाइल बमबारी के मंसूबे को रोका जाए। खुशकिस्मती से सिगरेट हैकिंग की ज़हीन निकलती है और वो कामयाबी से लड़ाका तैयारे को मखलूक पर मिसाइल फायर करने से रोक देती है। ओस्लो अब भी महफूज है और मंसूबा जिंदा है। एंड्रियास और नूरा अमल में कूद पड़ते हैं। पहले वो ट्रक के पीछे से एक बड़ा टार फटाते हैं और ज़ेरे ज़मीन मिलने वाली ट्रोल बच्चे की खोपड़ी जाहिर करते हैं। वो फिर ड्राइव करते हैं और आने वाले डेफ को अल्ट्रावायलेट लाइट के जाल की तरफ ललकारने लगते हैं। कुछ देर बाद ट्रोल गैर इरादी तौर पर खोपड़ी तोड़ देता है और समझ जाता है कि उसकी फैमिली बाकी नहीं रही। गुस्से में वो फिर नूरा और एंड्रियास की तरफ तवज्जो करता है, मुसम्मिम कि उन्हें सजा देगा। फौजी अड्डे पर सिगरेट को बिलाखिर मिसाइल सिस्टम से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया जाता है। ताहम जनरल मिसाइल मंसूबा ख़त्म करने का हुक्म देता है जब वो तस्दीक करते हैं कि करीब शहरी मौजूद हैं। दरे असना नूरा और एंड्रियास किसी तरह ट्रोल को उनकी मुकर्ररा जगह पर ले आते हैं। वक्त ज़ाया ना करते हुए फौजी गाड़ियां उसे घेर लेती हैं और इस पर बड़ी अल्ट्रावायलेट लाइट चमकाना शुरू कर देती हैं। मंसूबा काम करता है और ट्रोल आहिस्ता आहिस्ता जलकर मर जाता है। ताहम देव को तकलीफ में देखकर नूरा को आखिरी लम्हे में दिल बदल जाता है। वो समझ जाती है कि मखलूक को कत्ल करना गलत है तो वो लाइट्स बंद कर देती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। वो फिर ट्रोल से कहती है कि पहाड़ों में चला जाए जहां वो महफूज है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर बहुत देर हो चुकी है। एक लम्हे की सुकून आती है जब तक कि अचानक तुलुए आफताब न हो जाए जो ट्रोल किंग को ढेर में गिरा देता है। मुकम्मल तौर पर पत्थर बनने से पहले नूरा पहुंचती है और उसे नर्म से छूती है। जबकि सब खुशी मना रहे हैं, एंड्रियास और नूरा सोचने लगते हैं कि क्या नॉर्वे के पहाड़ों की गहराइयों में मजीद ट्रोल्स छुपे हैं। नूरा फिर फैसला करती है कि वो इस इलाके को टोबियास बाउल्डर पुकारा करे। आखिरी सीन में फिल्म डोवरे पहाड़ की तरफ छलांग लगाती है जहां हम बहुत सारे पत्थरों को हिलते देख सकते हैं। अचानक एक और ट्रोल मलबे से उभरता है, नॉर्वे के लोगों पर अजाब ढाने को निकल पड़ता है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी आज की रीकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही मज़ीद सनसनीखेज़ फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।